जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन। वो बात करने जा रहे हैं नसरल्ला के बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और वीडियो को आओ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Good evening, Rahul, and good evening to my fellow panelists. Look, there are two issues here, and if I may, one needs to delve into the philosophical and psychological moorings in both. Rahul, there is a parallel world that is inhabited by hundreds of millions of Indians. This is a world where they are not bound by rules, morality, ethics, propriety, by which they want the rest of us to be bound by. Because their morality, their ethics, their conduct is not dictated by man, but by God. The only question that needs answering right now is, would the attendance at these funerals or wakes or requiem marches for the terrorist Nasrallah beat the record for terrorist Yaqub Memon's funeral or terrorist Burhan Wani's funeral? Where are all those who cry over mainstreaming of violence right now? Well, there they are, crying over a terrorist death and paying their respects. Every one of these charlatans has suddenly forgotten that Nasrallah ordered the cold-blooded murder of thousands of innocent men, women and children. But then again, these men, women and children who were murdered by Nasrallah were not innocent, because Jews have been called the worst of creatures, 98.6, 855, condemned to hellfire, 455, 98.6, called apes, 265, 7, 166, led by Satan, 460, eternally cursed, 447, transformed into apes and pigs and slaves of Tagut, 560. So for these people, paying respects to this man, calling him a martyr, is not mainstreaming of violence. Of course it's not mainstreaming of violence when in India, a political party can select as a candidate a man who offered 51 crores to anyone who beheaded Charlie Hebdo journalists, or condole the death of Wani the terrorist, or when an award can be presented to the PFI chief by a vice president, or when Yasin Malik is celebrated by a prime minister, or when thousands collect for funerals of terrorists. But these same people will call out Sadhvi Pragya's remark on Godse as mainstreaming of violence. Rahul, now quickly on the second more important issue. Let us be under no illusion. The situation is intractable. I repeat, intractable. It hasn't changed for 1,000 years. Why on earth would it change in 10? Islam transcends national boundaries. You are a Muslim over and above everything else. Rahul, we have to accept what Ambedkar said. Quote, Islam is a close corporation. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin, unquote. We also have to accept what Rabindranath Tagore said. There are plenty of Islam. martyrs. One second, Kamru Chaudhary, let him finish. Let Dr. Ranganathan finish, please. Let him finish. Don't jump in. I'll have to lower your fader. Otherwise, please, it's not fair. But I cannot allow the martyrdom of Muslims to be so. No, what is the problem? No, he cannot say the Muslims' elegance does not lie to the motherland. Sir, it is Dr. Ambedkar he's quoting. He's quoting Dr. Ambedkar. You have a problem, take it up with Dr. Ambedkar. 1 minute, please. Let him finish. Let him finish, sir, please. Let him finish. It's a crime now to even quote Dr. Ambedkar. That's I'll tell you, but bizarre. It goes worse, Rahul, because we not only have to accept Dr. Ambedkar, we have to accept Rabindranath Tagore, what he said. That quote, Islam has distinct enmity against other religions, that it is not satisfied with observing its own religion, but is determined to destroy all other religions. Will Rabindranath Tagore be condemned by this Islamist also? We also have to accept what Karl Marx said, that for Muslims, the world is divided into two nations, Darul Islam and Darul Harb. It is the duty of every Muslim to help convert Darul Harb into Darul Islam. Ideology cannot be compared to the Islamic ideology. Rahul, I take strong objection, Rahul. This is not the way. This is not the way. You are doing such a good job running this thing. Now, this man constantly interrupts. If he has a grouse, let that grouse be with Ambedkar and Tagore. Why is he against me? Why is he so rattled? Can I please finish, Rahul, with your permission? Yeah, please finish. I'll get him to respond right after you finish. No problem. Thank you. Let him castigate Tagore if he has the guts. He's a Bengali, he claims so. Look, in wanting to stop Indian Muslims from thinking of Ummah first and India later,
We are trying to negate history. But finally, this also needs to be said, Rahul, just 30 seconds. It is not about them. It is about us. And let me explain this. Remember how Indian Muslims united and indulged in Azad Maidan protests and riots to force India to take in Muslim Rohingyas from Myanmar? It resulted in us taking 40,000 Rohingya Muslims. Another matter, that no Indian Muslim ever marched to force Indian government to settle 7 lakh Kashmiri Hindus driven out from their homes. But it's not about them, as I say, it's about us. All Hindus remember Azad Maidan. But do we remember Khamong Sheikh? We don't. I'll tell you what Khamong Sheikh is. It is a place in Myanmar where Muslim Rohingyas murdered more than 100 Hindus and their families mercilessly, raped, pillaged, even buried some alive. Many among those Rohingya Muslims who committed that atrocity might right now be in India as refugees. But as I said, no Hindu ever came out to talk about Khamong Sheikh. All we do is get jealous of Indian Muslims uniting for Rohingya Muslims or Palestinian Muslims or Lebanese Muslims. Have Hindus marched in their thousands over the plight of Bangladeshi Hindus? Our government hasn't even made one proper rehabilitation camp. So if we are jealous of other person's unity, we are divided. Absolutely. Look, you have a point there. You have definitely a point there. The response. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप देख सकें और अपना विचार व्यक्त करिए कमेंट में ताकि मेरे को पता चल सके आप क्या सोचते हैं इस इशू के ऊपर। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं इज़राइल, ईरान, नसरुल्लाह, हिज़्बुल्लाह, ये जो सिचुएशन चल रही है दुनिया में अभी उसके ऊपर। और ये दुनिया में सिचुएशन इसलिए चल रही है क्योंकि इज़राइल ने जो हिज़्बुल्लाह थी, एक ग्रुप है जो ईरान सपोर्ट करता है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, एक मिलिशिया है, उसको ईरान पूरी तरह सपोर्ट करता है। वो सपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको इज़राइल में पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट देना है और उधर अटैक्स करते रहता है लेबनान के थ्रू। लेबनान एक स्टेट हुआ करता था, स्टेट अभी भी है, हुआ नहीं करता था, अभी भी है, जो एक वक्त पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी हुआ करता था। पर आप लोगों को पता है कि क्रिश्चियन मेजॉरिटी से वो मुस्लिम मेजॉरिटी कैसे हुआ? वो हुआ इसलिए क्योंकि उधर के जो क्रिश्चियंस हैं उनको सेक्युलरिज़म का एक अजीब व गरीब नशा छा गया था। उस नशे के कारण उन लोगों ने, जब पैलेस्टीनियंस बाहर निकल के दूसरे देशों में जा रहे थे 90s 80s में, मेरे ख्याल से 70s 80s में जा रहे थे, उस टाइम बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है उसको दूसरे अरब स्टेट्स नहीं ले रहे थे। तो फिर लेबनान के लोग हैं, लेबनान के जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के क्रिश्चियन लोग थे, उन लोगों ने इनको स्टेटस दिया, उधर रहने के लिए घर दिया, सब कुछ दिया। पर एंड में उनको पता नहीं था कि वो अपने जो मुस्लिम ब्रदर्स हैं उनके साथ मिलके वही क्रिश्चियन लोगों को उधर से भगा देंगे और वो मेजॉरिटी बन गए तो फिर वो भगा ही देंगे। तो फिर इंडियन लोगों को भी, इंडियन हिंदूज़ को भी ये समझ लेना चाहिए कि आपको बचाने के लिए बस हिंदू आएगा, एंड में आपको यही प्रॉब्लम होगा। तो फिर ये एक लेबनान की कहानी थी। और लेबनान में अभी पूरी तरह प्रॉक्सी कंट्रोल करता है ईरान। ईरान आप लोगों को तो पता ही होगा कि एक ऐसा स्टेट है जो पहले एक राजा के अंडर हुआ करता था और यूएस का बहुत बड़ा एलाई हुआ करता था 70s के वक्त में, और उधर तख्ता पलट हो गया था खमेनी के साथ मिलके। बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने किया था, उधर कम्युनिस्ट भी खमेनी के साथ थे और खमेनी ने अपना गवर्नमेंट बनाते ही सबसे पहले कम्युनिस्टों को मारा और अपना स्टेट बनाया। और उस स्टेट में औरतों को कोई राइट नहीं है, औरतें बिल्कुल हिजाब में रहती हैं और बिल्कुल रेडिकली अपना जो रिलीजन है उसको थोपते हैं लोगों के ऊपर। और जो दुनिया के ऊपर है वो अभी अजाब बन चुके हैं क्योंकि ये वॉर बहुत खतरनाक रास्ते में भी जा सकता है दुनिया के लिए, क्योंकि ये स्टेट जो है ईरान, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी है उसके पास, वो न्यूक्लियर वेपन्स भी बना सकता है, उसने एबिलिटीज़ दिखाए हैं उसकी पहले। और अभी तो इज़राइल ने, आप लोगों को पता होगा कि सीरिया में एक रशियन वेमेंस डिपो था, उधर भी वेपन्स डिपो था, उधर भी अटैक कर दिया था। तो फिर रशिया भी अभी हेल्प कर रहा है ईरान को यूएस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। और आप लोगों को तो पता ही होगा जो इज़राइल के अगेंस्ट हुआ था अक्टूबर 7 को 2023 को, वो एक बहुत
ख़तरनाक हरकत हुआ था। और जब भी ऐसे कोई हरकत दूसरे सॉवरेन नेशन के अगेंस्ट होता है तो फिर वो जो नेशन है जैसे इज़राइल है वो रिटेलिएट करता है। रिटेलिएशन इज़ अ मस्ट। अगर आप रिटेलिएशन नहीं करोगे तो वह खासकर ऐसे एरिया में जहाँ आप पूरी तरह सराउंडेड हो, वो एक ही देश है मिडिल ईस्ट में जो एक डेमोक्रेसी है। अदरवाइज़ ऑल ऑफ द स्टेट्स इन मिडिल ईस्ट आर एक थियोक्रेसी है या थियोक्रेसी प्लस ये जो राजतंत्र है वो दोनों मिला के हैं। जैसे यूएई है, ओमान है, कतर है, जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है। कतर में भी थोड़ा स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स में भी है जो पार्लियामेंट रखते हैं, पर वो पार्लियामेंट एक पपेट पार्लियामेंट होता है जो उनके जो किंग है, उनके जो शेख है उनके अंडर होता है। तो फिर वो एक चीज़ है। और ये जो अरब स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे ये जो एक रेडिकल तरीका है ना अपना पॉलिसीज़ बनाने का, उसके अंडर से बाहर निकल रहे हैं। और वो इज़राइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में जो जेरेड कुशनर थे उन्होंने एक अकॉर्ड बनाया था, अब्राहम अकॉर्ड। उस अकॉर्ड के कारण इज़राइल और जो अरब स्टेट्स हैं वो एक साथ मिलके तिजारत करेंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे और ईरान के अगेंस्ट एक हाथ मिला के उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। और ईरान ने तो इज़राइल के अगेंस्ट तो बहुत कुछ किया है, जैसे हिजबुल्लाह को खड़ा करके रखा है, ये जो लेबनान में, और भी बहुत तरीके से अटैक किया है इज़राइल को, क्योंकि उन लोगों को हेजेमन बनना है, जो एक मुस्लिम वर्ल्ड का हेजेमन है ना, मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मुस्लिम बनना है इन लोगों को, जो हम वी आर द रियल इस्लामिक पीपल, वो तय करना है इन लोगों को। जो सुन्नी लोग हैं जैसे स्टेट्स हैं उनको उनसे भी ज़्यादा कट्टर बनना है। तो फिर ईरान का ये एक पर्सपेक्टिव है और एक ऑब्जेक्टिव भी है इस लड़ाई के ऊपर। इसलिए वो बोलते हैं कि अगर जो अरब स्टेट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं ना, अभी ज़्यादातर तो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस, तो बोल रहे हैं वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विथ, हमको कोई लेना देना नहीं है फ़लस्तीन से। हमारे जो 70% जो यूथ है उन लोगों को फ़लस्तीन के बारे में जो एक जो रेजिस्टेंस है, फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस, उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। और वो अपने देश के लिए प्रॉस्पेरिटी लेके आना चाहते हैं, उधर काम करना चाहते हैं लोगों के साथ। तो फिर ऐसे लड़ाई करके वो काम नहीं कर सकते। परपेचुअल वॉर में कभी कोई स्टेट नहीं काम कर सकता, तो फिर वो उधर ऐसे काम नहीं करना चाहते। और आप लोगों को तो पता ही, इज़राइल ईरान से क्यों लड़ता है। आपको पता है होगा कि हमारे बॉर्डर में 2 स्टेट्स हैं जो हमारे अगेंस्ट है। ये भी बोल सकते हैं 3 हो गए अभी, क्योंकि यूएसए ने तख्ता पलट करके जो रिजीम चेंज करके बांग्लादेश में भी एक स्टेट बना दिया है जो हमारे अगेंस्ट है, हमारे प्रो नहीं है। वो इस जमात इस्लामी के लोग हैं उधर, और वो हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं वो तो सब लोगों को पता है। तो फिर ऐसे 3 स्टेट हैं। वैसे ही इज़राइल के अगेंस्ट अभी बस ईरान है, और दूसरे जो भी अरब स्टेट्स हैं वो अभी इज़राइल के अगेंस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा से लोग होंगे उनके कंट्रीज में भी होंगे जो कट्टरपंथी लोग होंगे, पर उनके जो टॉप लीडरशिप में है वो इज़राइल के अगेंस्ट अब नहीं है। वो को एग्जिस्टेंस में अब बिलीव करते हैं, और वो समझते हैं कि हम इज़राइल के साथ मिलके बहुत आगे निकल सकते हैं, हमको ऐसा लड़ाई करते रहना कोई रास नहीं देता है। तो फिर अभी इज़राइल के लिए हमारे सिचुएशन में जैसे पाकिस्तान है, जैसे इज़राइल के लिए पाकिस्तान ईरान है, और ईरान को कंटेन करना इज़राइल का बहुत पुराना सा ऑब्जेक्टिव है, और वो ऑब्जेक्टिव करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। और उनको पहले भी कंटेन करने की कोशिश की, जब से उन लोगों ने ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश किया उसके बाद तो और भी ज़्यादा। और यूएसए ने तो उनको न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेने के लिए एक डील भी दिया था, टू मेक देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, जो उनका जो पूरा जो न्यूक्लियर रिसर्च है उसको पूरी तरह डिसमेंटल करने के लिए एक बहुत बड़ा जो एक पैक्ट था उसको भी साइन किया था ओबामा ने। पर वो पैक्ट तो बिल्कुल ऐसा ही पैक्ट है जैसे कोई फाड़ के ऐसे ही फेंक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये वो पैक्ट में कोई भी दम नहीं था, और ईरान जब भी चाहे बना सकता है वेपन रशिया के हेल्प से। और रशिया के पास अभी ऑब्जेक्टिव भी है वो कि हमारा जो एक वेपन डिपो है उधर सीरिया में, उधर अटैक कर लिया है जो मिस्टर
बेंजामिन नेतन्याहू ने, तो फिर उधर का ऑब्जेक्टिव। और अभी हम बात कर रहे थे, ये सब तो एक हिस्ट्री है, ये एक जनरल नॉलेज के बोल रहा था। तो फिर इंडियन मुसलमानों को यही समझना चाहिए कि ये एक तरीका है, आप मत करिए ये सब अपने देश में, अपने देश के लोगों के साथ रहिए। जो पैन इस्लामिज़म है, जिससे आप पूरे दुनिया में जो भी इस्लाम, जो भी मुसलमानों के अगेंस्ट हो रहा है, उसके लिए आप इधर नहीं लड़ सकते। आप इस देश के वासी हो, आप कोई और बाहर के लोग नहीं हैं, देश के लोग नहीं हो जो इधर जाके प्रोटेस्ट करो। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो, पर आप इधर कोई टेररिस्ट लोगों का गुणगान नहीं कर सकते। कल आपके जो पाकिस्तान में ये हाफिज़ सईद मर गया, या मोहम्मद अज़हर मर गया, और भी दूसरे जो लोग हैं वो मर गए, जो उधर है लखवी है और भी टेररिस्ट हैं वो मर गया, तो फिर इधर जलसा लगाना स्टार्ट कर दोगे क्या आप लोग? नहीं करोगे ना। तो फिर वैसे ही अगर इज़राइल में कुछ हो रहा है या लेबनान में कुछ हो रहा है, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, तो फिर आप ऐसे बातें मत करिए। आप अपने काम से काम रखिए और देश के लिए अच्छा काम करिए, देश के लिए सोचिए और पढ़िए लिखिए। वैसे भी शिया कम्युनिटी बहुत समृद्ध कम्युनिटी है, जो सुन्नी कम्युनिटी से तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर उन लोगों को अपने जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में ध्यान देना चाहिए। ऐसी अनाप शनाप चीज़ों में ज़्यादा अपना टांग नहीं लड़ाना चाहिए, और वो अड़ाएंगे तो फिर गलती उनकी होगी। देश में अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बीजेपी के अंडर हैं, तो फिर बीजेपी के लोग भी, जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो इन सब लोगों को अरेस्ट करके अंदर डालेंगे अगर ये हुड़दंग करेंगे तो फिर यही बात है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मेरे को आप लोगों का व्यू क्या है वो पता चल सके। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी ये वीडियो आए तब ड्रॉप करें, तो फिर आप सबसे पहले उस पर अपना व्यू डाल सकें। तो फिर जय श्री राम, जय हिंद, हर हर महादेव।